students, how are you all? I hope you all must be going very well. Today, students, we are going to start the chapter number 8 of class 4th science. That is about safety and first aid. Students, as we all know that our safety is in our hands only. All right? Because the accidents could occur anywhere, anyhow, and at any time. So, to prevent them, we all should follow some safety measures or the rules at every particular place and all the time so that we can keep ourselves and also the others around us safe. So, today in this lesson, we will learn about safety at home, some safety rules while using the electrical appliances, then safety on road while swimming, at school, fire safety, and also the concept of first aid. All right. So first of all, we have to look at the pictures given below, and then you have to tick the activities that are safe and cross the activities that are not safe. यहाँ पे कुछ activities आपको given है. जो activities safe हैं, you have to tick them, and जो activities safe नहीं है, unsafe है, you have to cross them out. So in the first picture, you can see कि यहाँ पे जो boy है, he is crossing the road at zebra crossing. So this is a safe activity, so we will make it tick. Secondly, यहाँ पे girl क्या है? She is playing with the mastic, which is not safe. It could hurt her. So we will cross this activity. Secondly, here the children are playing, they are enjoying the swings, but not properly. You can see, after the boy hai, he could fall from the swing. So it is not safe. Then यहाँ पे the boy is what? Walking on the road, or we could say he's running on the road. Again, it is not safe activity. Here the boy is teasing an animal. ठीक है, stray animals को हमें tease नहीं करना है. So again, it is not safe. And here the boy is pushing this another boy, ठीक है, which is again unsafe activity. So we will cross it out. All right? Sure. Now accidents can occur anywhere, anytime, and with anyone when we are not careful. Almost all accidents occur when we are careless. For example, when we carelessly cross the road without looking at running vehicles around us, drive rash, lean too far out of the window of moving bus or car, and so on. So safety is important for life, and we can stay safe and avoid the accidents by being aware of our surroundings and following some simple rules. Alright, so what are they saying is, students, as I told you कि accidents कभी भी, कहीं भी और किसी के साथ भी हो सकते हैं अगर आप careful नहीं हो. ठीक है, आपको alert रहना चाहिए, careful रहना चाहिए. Because almost सभी एक्सीडेंट्स तभी होते हैं जब हम केयरलेस होते हैं. एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन यू, जब आप केयरलेसली क्या कर रहे हो, रोड क्रॉस कर रहे हो, आपने क्या नहीं देखा, साइड में नहीं देखा कि जो रनिंग व्हीकल्स है, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू एंड यू हैव नॉट सीन देम एंड स्टिल यू आर क्रॉसिंग द रोड. सो वहाँ पे वो केयरलेसनेस है. ऑलराइट, देन उसके बाद क्या है, आप रैशली ड्राइव कर रहे हैं, किसी भी कार या मूविंग व्हीकल के विंडो से आप बाहर लीन आउट कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा. सो ये सभी एक्टिविटीज़ हैं विच आर अनसेफ. ऑलराइट, सो इसीलिए सेफ्टी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, एंड हम सेफ रह सकते हैं, एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं अगर हम अपने सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर होंगे एंड कुछ सिंपल रूल्स को, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे. सो नाउ लेट अस रीड अबाउट सम सेफ्टी रूल एट डिफरेंट प्लेसेस व्हिच वी ऑल शुड फॉलो. सो नंबर 1, सेफ्टी होम, यानी कि घर पे हम कैसे सेफ रह सकते हैं. सी स्टूडेंट्स, वी आर मोस्ट सेफ एट अवर होम. सबसे ज्यादा जो हम सेफ अपने आप को मानते हैं कि हम सेफ है अपने घर पर, लेकिन एक्सीडेंट्स जो है स्टूडेंट्स हमारे घर पर भी हो सकते हैं. सो वी हैव टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स एट होम आल्सो. Number 1, while climbing and coming down the stairs, never rush or push anyone and never slide down the railing. What they saying कि जब आप stairs पे क्लाइम कर रहे हो या स्टेयर्स नीचे उतर कर आ रहे हैं, तो आपको कभी भी क्या नहीं करना है, रश नहीं करना है, भाग कर नहीं जाना है, बहुत आराम से धीरे धीरे आपको स्टेयर्स पे चढ़ना या उतरना चाहिए. एंड देन यू हैव नॉट पुश ऑल्सो एनीवन. स्टेयर्स पे किसी को पुश भी नहीं करना. स्टेयर्स पे जो रेलिंग्स होती हैं उस पर स्लाइड डाउन नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू मे फॉल एंड गेट हर्ट ओवर हियर. सेकेंडली, यूज अ स्टूल और लेडर. ठीक है, अगर कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज है जो हाइट पे रखी है ना, आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप एक स्टूल या लेडर का यूज करेंगे उसके लिए. थर्ड, स्टे अवे फ्रॉम थिंग्स. ठीक है, मैच बॉक्स, कैंडल, नाइफ, मेडिसिन, इन सब चीजों से आपको दूर रहना है. देन ऑलवेज कीप फ्लोर्स, आपके घर के जो फ्लोर्स हैं उन्हें क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए.
डू नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ आप खेलेंगे नहीं। किसी भी इलेक्ट्रिक सॉकेट में आपको अपने फिंगर्स को पुट नहीं करना है, बिकॉज इन केस समवन गेट्स इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, और अगर उसके बाद भी कोई पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो आप उस पर्सन को टच नहीं करेंगे, ठीक है। देन यूज अ वुलन ऑब्जेक्ट और थिक ड्राई क्लोथ टू पुल द पर्सन अवे फ्रॉम दैट प्लेस। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली उस पर्सन को टच नहीं करना है, एक वुलन ऑब्जेक्ट या कोई भी थिक ड्राई क्लोथ आप लोगे उस पर्सन को उस पर्टिकुलर प्लेस से दूर ले जाने के लिए। और उससे भी पहले आपको क्या करना है, जो मेन स्विच है उन्हें टर्न ऑफ करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट, नेवर प्ले विथ शार्प एज ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आपके नाइव्स है, ब्लेड, पिन, ठीक है, ये सारे आपके शार्प एज वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप इनसे खेलेंगे नहीं बिकॉज इससे आपको कट लग सकता है और दे कैन फ्रिक ही। प्लेस और टॉयज एंड बुक्स, अपने टॉयज एंड बुक्स को आपको राइट प्लेसेस पे रखना है। एंड इन केस यू हर्ट योरसेल्फ, ठीक है, अगर आप खुद को हर्ट कर लेते हैं किसी रस्टेड ऑब्जेक्ट से, तो आपको क्या करना है, डॉक्टर को कंसल्ट करना है, बिकॉज यू मे नीड अ टेटनस इंजेक्शन ओवर हियर। ऑलराइट, नाउ देन वी हैव सेफ्टी रूल्स व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है उन्हें यूज करने के लिए हमें क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं। नंबर 1, नेवर टच द इलेक्ट्रिक हीटर। कोई भी इलेक्ट्रिक हीटर है, स्टोव है, आप उसको टच नहीं करेंगे व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन। सेकेंडली, इफ एनीवन गेट्स इलेक्ट्रिक शॉक, एज आई टोल्ड यू, अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो आपको अपने घर के सारे मेन स्विचेस को टर्न ऑफ करना है। थर्ड, बी केयरफुल जब आप आयरन, अवन, इन सब चीजों को यूज कर रहे हैं। इफ वाटर इज बीइंग हीटेड, अगर पानी को हीट किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है एक इमर्जन रॉड का यूज करके, तो आपको उस बकेट को टच नहीं करना है अगर स्विच अभी ऑन है। ऑलराइट, और इसके अलावा हमेशा एक नॉन मेटालिक बकेट का यूज करना चाहिए। देन नेवर टच इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, जो आपके घर की इलेक्ट्रिक फिटिंग्स है उन्हें आप वेट हैंड्स यानी कि गीले हाथों से टच नहीं करेंगे, बिकॉज यू मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक ओवर देयर। नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट, सेफ्टी ऑन रोड। अब रोड पे सेफ्टी मेजर्स क्या है? सी, accidents on the road occur most often because traffic rules are not followed and roads are made for vehicles, so never forget it. Always walk on footpath and use zebra crossing, very important. क्या बोल रहे हैं कि यूजुअली एंड मोस्टली जो एक्सीडेंट्स है वो रोड्स पे होते हैं। वाई? बिकॉज हम वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना। रोड्स जो है स्टूडेंट्स वो व्हीकल्स के लिए बनाई गई है और हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। केयरलेसली वहाँ पे हम वॉक करते हैं, केयरलेसली ड्राइव करते हैं, रैशली, एंड देन द एक्सीडेंट्स अकर ओवर देयर। सो हमेशा आपको क्या करना है, व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, सो आपको फुटपाथ का यूज करना है, एंड जब आप रोड क्रॉस करना चाहते हैं देन यू हैव टू यूज जेब्रा क्रॉसिंग। ऑलराइट, चलो, सो नाउ दे हैव गिवन यू द रूल्स व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड। नंबर 1, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पे वॉक करेंगे। इफ देर इज नो फुटपाथ, अगर फुटपाथ नहीं है तो आपको ट्रैफिक को फेस करते हुए वॉक करना है। सेकेंडली, ऑलवेज क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग, हमेशा रोड को जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना है। मेक श्योर दैट द वॉक सिग्नल इज ग्रीन, मीनिंग दैट इट इज सेफ टू क्रॉस नाउ। एंड इस चीज का ध्यान रखना है कि जो वॉक सिग्नल है वो ग्रीन है एट दैट टाइम ऑन द रोड, इट मीन्स कि अब क्या है, रोड क्रॉस करना सेफ है। After that, stop and look left and then right and then left again before you step onto the street. जब आप स्ट्रीट पे जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रुक कर अपने लेफ्ट हैंड साइड देखना है, राइट हैंड साइड देखना है, एंड देन अगेन लेफ्ट हैंड साइड। इंश्योर करने के बाद कि कोई व्हीकल हमारे टूवर्ड्स नहीं आ रहा है, देन ओनली यू हैव टू स्टेप ऑन टू द रोड। बी केयरफुल व्हाइल यू आर क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करते वक्त हमें केयरफुल रहना है एंड नेवर रन ऑन द रोड। After that, never put your head or hand out of the window from a moving vehicle. एक चलते हुए व्हीकल से अपने हैंड या अपने किसी भी बॉडी पार्ट को, हेड को बाहर की तरफ, विंडो से बाहर नहीं निकालना चाहिए। एंड नेवर प्ले ऑन द रोड, ना तो रोड पे रन करेंगे ना ही वहाँ पे रोड पे खेलना है। नेक्स्ट वी हैव सम सेफ्टी मेजर्स व्हाइल स्विमिंग आल्सो, ठीक है। तो स्विमिंग के दौरान सेफ्टी मेजर्स क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्विमिंग? स्विमिंग इज अ ग्रेट फन। स्विमिंग एक अच्छा फन एंड एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। ऑलराइट, इट इज अ ग्रेट फन एंड अ गुड एक्सरसाइज। सो दे हैव सम सेफ्टी रूल्स गिवन हियर टू बी फॉलोड व्हाइल स्विमिंग आल्सो। ऑलराइट, नंबर 1, ऑलवेज गो फॉर स्विमिंग विद योर एल्डर्स, हमेशा स्विमिंग के लिए हम अपने एल्डर्स के साथ जाएंगे। सेकेंडली, ऑलवेज स्विम इन अ प्रोटेक्टेड पूल ओनली, ठीक है, एक ऐसे पूल पे ही स्विमिंग करनी है जो चारों तरफ से बाउंडेड होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए।
आफ्टर दैट नेवर स्विम इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल. अगर आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, यू आर नॉट वेल, देन यू हैव टू नेवर स्विम. डू नॉट पुश ईच अदर इनटू द वाटर. पानी में किसी को भी पुश नहीं करना है. डू नॉट गो नियर द डेप्थ ऑफ द पूल व्हाइल स्विमिंग इफ यू डोंट नो हाउ टू स्विम. अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आप क्या नहीं करेंगे, स्विमिंग पूल के डेप्थ में ज्यादा नहीं जाएंगे व्हाइल स्विमिंग. एंड डू नॉट स्विम, कभी भी अपने इंस्ट्रक्टर की परमिशन के बिना यू डू नॉट हैव टू स्विम इन द वाटर. Next, we have what safety at school. See, after home we spend most of the time in our school. अब अपने घर के बाद हम सबसे ज़्यादा टाइम अपने स्कूल में स्पेंड करते हैं. So for that we have to follow the given rules at school also. Number 1, never play or run in the classroom. ठीक है, क्लासरूम में play या run नहीं करना है. Do not push or pull each other while going up or getting downstairs. Stairs पे आप जा रहे हैं ऊपर, or if you are coming down of the stairs, so you do not have to push or pull any of the students along with you. Do not jump over tables and chairs. Tables and chairs पे jump नहीं करना है. And never throw the things around in the class also. Alright? चल. Now we have the topic fire safety. So fire is a vital part of our life and it helps us to cook food, keep us warm and light our way in the dark. Fire student क्या है, हमारी लाइफ का एक बहुत important part है. ठीक है, because इसके थ्रू हम अपने फूड को कुक करते हैं, हम वार्म रह सकते हैं एंड ऑल्सो फायर हमें लाइट प्रोवाइड करती है इन द डार्कनेस. बट इट बिकम्स अवर एनिमी. लेकिन यही फायर हमारी एनिमी यानी कि हमारी दुश्मन भी हो सकती है अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है. इट कैन किल और हार्म अस ऑल्सो. ऑलराइट, इट कैन डिस्ट्रॉय अवर होम्स. ठीक है, फायर के थ्रू हमारे होम्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. फायर पूरे फॉरेस्ट को बर्न कर सकती है एंड एक एम्प्टी लैंड बना देती है. इवन इट कुड बर्न everything to ashes. Okay, so now how can we prevent it? So they have given you some prevention of what? Fire. Number 1, it is very difficult to know when the fire may take place and it may start from something as small as a lighted matchstick that is carelessly thrown away. What they're saying कि students इस चीज को predict करना कि fire कब और कहाँ लगेगी ये बहुत difficult है. We cannot predict it. ठीक है, तो क्या हो सकता है, फायर जो एक छोटी सी लाइटेड मैस्टिक थी जिसे आपने केयरलेसली ऐसे थ्रो कर दिया, तो वहां से भी आग लग सकती है. ऑलराइट, ठीक है, एक कैंडल जो कि एक कर्टेन के पास बर्न कर रही थी, वहां से भी फायर आपकी बढ़ सकती है. ठीक है, एंड इट कैन ऑल्सो स्टार्ट ड्यू टू केयरलेसनेस व्हाइल कुकिंग. ठीक है, खाना बना रहे हैं आप, कुकिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे आपकी केयरलेसनेस की वजह से भी फायर कुड कैच. सो सम ऑफ द रूल्स टू अवॉइड द फायर. नंबर 1, नेवर प्ले. कभी भी आप लाइटर्स या मैस्टिक के साथ नहीं खेलेंगे. एंड एक्सटिंग्विश अ यूज मैस्टिक बिफोर थ्रोइंग इट अवे. कभी भी एक यूज्ड मैस्टिक को थ्रो करने से पहले आपको उसे प्रॉपर्ली एक्सटिंग्विश करना है, देन ओनली यू हैव टू थ्रो इट अवे. सेकेंडली, वेयर कॉटन क्लोथ्स. ठीक है, जब भी आप एक कुकिंग स्टोव के पास खड़े हैं तो आपको कॉटन क्लोथ्स ही पहनने हैं, सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनेंगे, बिकॉज सिंथेटिक क्लोथ्स जो है फायर को बहुत इजीली एंड स्विफ्टली कैच कर लेते हैं. स्टोर पेट्रोल एंड कैरोसिन. पेट्रोल एंड कैरोसिन को सेफली स्टोर करना है, किसी भी सोर्स ऑफ हीट से दूर रखना है, बिकॉज वो फिर फायर बहुत इजीली कैच कर लेंगे. टर्न ऑफ द गैस स्टोव. ठीक है, गैस स्टोव एंड रेगुलेटर को टर्न ऑफ करना चाहिए व्हेन दे आर नॉट इन यूज. ऑलराइट, सी नाउ इफ अ फायर स्टार्ट्स इन द प्लेस अराउंड यू. अगर एक फायर कहाँ आपके अराउंड सराउंडिंग में जो प्लेस है, अगर वहां फायर होती है तो व्हाट यू हैव टू डू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कवर योर नोज एंड माउथ. अपने नोज एंड माउथ को एक वेट क्लोथ से आप कवर करेंगे, खुद को उस फायर के थ्रू प्रोड्यूस होने वाले स्मोक एंड हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज स्मोक इज मोर पीपल. ठीक है, एक्चुअल फायर से ज्यादा उस स्मोक उस फायर के थ्रू प्रोड्यूस होने वाले स्मोक से लोगों की जान ज्यादा जाती है. इफ डोर इज क्लोज्ड, जिस प्लेस पे वहाँ पे फायर लगी है, आग लगी हुई है, वहां पे डोर अगर क्लोज्ड है तो आपको सबसे पहले यू हैव टू पुट योर हैंड अगेंस्ट इट. ऑलराइट, एंड अगर आपको डोर हॉट फील हो रहा है, इट मीन्स कि उस डोर के अदर साइड पे भी फायर कैच हो चुकी है. अब आप ओपन यानी कि डोर को ओपन नहीं करेंगे. नाउ यू हैव टू ट्राई टू फाइंड अनदर वे टू गेट आउट. कोई दूसरा रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा वहां से बाहर जाने के लिए. गेट टू द फ्लोर एंड क्रॉल आउट ऑफ द रूम. ठीक है, फ्लोर पे लेट कर क्रॉल करके आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे. एंड इफ द फायर हैज स्टार्टेड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल गैजेट और ऑयल. अगर फायर किसी इलेक्ट्रिकल गैजेट या
ऑयल की वजह से लगी है, तो कभी भी वाटर का यूज नहीं करेंगे उस फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। इंस्टेड आप सैंड का यूज करेंगे, मिट्टी का। ठीक है। एंड फॉर ऑल अदर फायर, उसके अलावा कोई और अगर रीजन है फायर का, देन यू कैन यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर एंड वाटर। नाउ इन केस समवन इज ऑन फायर, अब इन केस अगर कोई पर्सन फायर में फंसा हुआ है, तो आपको क्या करना है, उस पर्सन को रोल करना है इन अ ब्लैंकेट जब तक जो फ्लेम्स है वो पुट आउट नहीं हो जाती हैं। डू नॉट पोर वाटर ऑन अ पर्सन विद सीवियर बर्न्स। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत सीवियर बर्न्स हो चुके हैं, उस पर्सन के ऊपर आप पानी नहीं डालेंगे, बिकॉज उसमें जो पर्सन है एक स्टेट ऑफ शॉक में जा सकता है। इफ योर क्लोथ कैच फायर, अगर हमारे खुद के कपड़ों ने फायर पकड़ ली है, सो नेवर रन, कभी भी भागना नहीं है, बिकॉज इफ योर क्लोथ और बॉडी कैच फायर, ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आपके कपड़े या आपकी बॉडी ने क्या करा है, फायर कैच कर लिया है, तो आप रन नहीं करेंगे, उससे फायर ज्यादा स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, स्टॉप वेयर यू आर, जहां हैं आप वहीं रुक जाएंगे एंड अपने फेस को हैंड्स के थ्रू कवर करेंगे। ड्रॉप टू द ग्राउंड, फिर आपके ग्राउंड पे ड्रॉप करना है एंड फ्लोर पे रोल करना शुरू करना है। व्हाट विल इट डू, इससे एयर की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी एंड फायर विल स्टॉप, एंड ऑल्सो इट विल रिड्यूस द बर्न, जो बर्न्स आपके बॉडी पे आ सकते थे वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज फर्स्ट एड। इफ एन एक्सीडेंट अकर्स, कॉल अ डॉक्टर। सी स्टूडेंट्स, अगर एक एक्सीडेंट हो जाता है स्टिल इतने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के बावजूद, देन यू हैव टू कॉल अ डॉक्टर। एंड बिफोर द डॉक्टर अराइव्स, डॉक्टर के आने से पहले उस विक्टिम की प्रॉपर केयर करना भी बहुत जरूरी है, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज फर्स्ट एड। मीन्स जो सबसे पहला एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट जो हम एक इंजर्ड पर्सन को देते हैं बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर, दैट इज नोन एज फर्स्ट एड। Alright? See, they have given you, it is the immediate and correct medical help given before the doctor arrives. Often it can save a life. What they're saying is students कि अगर एक अच्छा ट्रीटमेंट, एक फर्स्ट एड अच्छा मिलता है, एक सही टाइम पे अगर फर्स्ट एड मिल जाता है, तो उससे एक पर्सन की लाइफ भी सेव हो सकती है एंड ऑल्सो इंजरी के जो इफेक्ट्स है दे कुड बी रिड्यूस्ड। एंड वाइल गिविंग फर्स्ट एड, जब आप फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हो, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप खुद भी क्या रहें, काम रहें एंड बहुत फास्ट से एक्ट करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कट्स एंड वुंड्स, अगर कट या वुंड्स हैं तो हमें क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस कट को वॉश करेंगे विद क्लीन वाटर। ठीक है, एंड देन इसके बाद आपको उन्हें क्लीन करना है कॉटन से, एंड उस कॉटन को पहले आप एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में सोक करेंगे, जैसे कि डेटॉल और सेवलॉन के अंदर, एंड देन यू हैव टू क्लीन दैट वुंड विद दैट कॉटन विच इज सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। एंड देन इसके बाद उस कट्स को कवर करना है विद क्लीन बैंडेजेस और गॉज। नेक्स्ट इज बर्न्स। फॉर माइनर बर्न्स, अगर माइनर बर्न्स हैं तो आपको उस बर्न्ड पार्ट को कोल्ड वाटर में डिप करना है एंड उसके बाद उस बर्न्ड पार्ट को क्या रखेंगे, रनिंग वाटर, चलते हुए पानी के अंदर ही रखना है फॉर सम टाइम। ठीक है, डू दिस इमीडिएटली, लेकिन ये हमें इमीडिएटली यानी कि तुरंत करना चाहिए अगर माइनर बर्न की कंडीशन है, बिकॉज इससे वो जो वुंड है वो कूल डाउन हो जाएगा एंड जो सीवियर बर्न्स है वो अवॉइड हो जाएंगे। एंड माइनर बर्न्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो अपने आप हील हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ मोर सीरियस बर्न, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सीरियस बर्न है, देन यू हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली। नेक्स्ट वी हैव नोज ब्लीड। इफ योर नोज इज ब्लीडिंग, अगर आपकी नोज में ब्लीडिंग हो रही है तो डू नॉट बी अफ्रेड, घबराना नहीं है, यू हैव टू स्टे काम। ठीक है, आप सिट अपराइट, सीधे बैठना है एंड नोज को टाइटली प्रेस करना है विद योर फिंगर्स, एंड देन आप उसे क्लोज रखेंगे फॉर अराउंड 5 to 10 मिनट्स। इससे जो ब्लड है वो फ्लो करना स्टॉप हो जाएगा, एंड टिल दैट, जिस टाइम पे आपकी नोज में ब्लीडिंग हो रही है, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड यू हैव टू ब्रीथ थ्रू योर माउथ, नॉट विद योर नोज। नेक्स्ट, फेंटिंग सिचुएशन। फेंट मतलब बेहोश होना। अगर एक पर्सन फेंट हो जाता है तो यू हैव टू मेक हिम लाई डाउन, नीचे आपको लिटा देना चाहिए थोड़ी देर के लिए, एंड कीप द हेड लो फॉर द एक्स्ट्रा ब्लड। एंड जो आपका हेड वाला पार्ट है वो ज्यादा लो होना चाहिए, सो दैट ब्लड का फ्लो ब्रेन तक प्रॉपरली और ज्यादा होना चाहिए ड्यूरिंग दैट टाइम। पॉइजनिंग, मेनी थिंग्स आर अवेलेबल। सी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं स्टूडेंट्स जो पेस्ट किल करने के लिए अवेलेबल होती हैं, जैसे कि कुछ स्प्रेज, नेल पेंट्स, बॉल पेंट्स, डिटर्जेंट्स। ठीक है, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर हार्मफुल केमिकल्स आर देयर एंड दीज कैन प्रूव पॉइजनस। ये सारी चीजें पॉइजनस हो सकती हैं अगर हम इन्हें स्मेल कर लेते हैं या swallow कर लेते हैं। सो ऑल सच थिंग्स मस्ट बी केप्ट अवे। इन सभी चीजों को हमें कहीं सेफ प्लेस पर रखना चाहिए, एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करें आफ्टर यूजिंग एनी ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है,
इन केस ऑफ पॉइजनिंग, अगर पॉइजनिंग का केस है तो आपको क्या करना है, जो इंस्ट्रक्शंस उस पॉइजन के कंटेनर पे लिखे हुए हैं उन्हें रीड करना है, फॉलो करना है. देन यू हैव टू टेक द पर्सन टू द डॉक्टर. एंड ऑल्सो आपको सोर्स को कैरी करना है अपने साथ जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं जिसकी वजह से वो पॉइजनिंग हुई है. ऑलराइट, जिससे डॉक्टर्स की हेल्प होती है टू टेक द राइट एक्शन. नेक्स्ट इज इंसेक्ट स्टिंग. सी वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखना है कि जो बीज, वास्प की अदर इंसेक्ट्स हैं, दे विल स्टिंग ओनली व्हेन वी डिस्टर्ब देम. ये तभी आपको स्टिंग यानी कि काटेंगे अगर आप इन्हें डिस्टर्ब करते हैं, इनको टीज परेशान करते हैं. सो इफ अ बी स्टिंग्स यू, अगर एक बी आपको स्टिंग करती है तो आपको क्या करना है, उसके स्टिंग को रिमूव करने की कोशिश करनी है विद योर नेल्स. एंड नेवर पिंच इट, ज्यादा पिंच नहीं करना है कभी भी उसे, बिकॉज उससे पॉइजन आपकी बॉडी में एंटर हो सकता है. वॉश द एरिया, उस एरिया को फिर आप अच्छे से वाटर के थ्रू वॉश करेंगे. कुछ सूदिंग क्रीम आप अप्लाई कर सकते हैं. यूज अ सॉफ्ट पैड, एक सॉफ्ट पैड का आप यूज कर सकते हैं, उसको अमोनिया वाटर में सोक करके फिर आप उसे यूज करेंगे अपने स्टिंग वाले पार्ट पे, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा. अप्लाई कैलामाइन लोशन, कैलामाइन लोशन आप अप्लाई करेंगे अगर वहाँ पे इचिंग आपको हो रही है. एंड ऑल्सो आप बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम के पेस्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं. बी प्रिपेयर, व्हाट इज इट? बी प्रिपेयर्ड इज द मोटो ऑफ स्काउट एंड गाइड्स. स्काउट एंड गाइड्स का एक मोटो होता है बी प्रिपेयर्ड, एंड इसे हम अपनी डेली लाइफ में भी फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, बी केयरफुल, हमेशा हर वक्त आपको केयरफुल रहना चाहिए. कीप ऑल इंपॉर्टेंट टेलीफोन नंबर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट टेलीफोन नंबर्स हैं आपको अपने पास हमेशा रखने चाहिए. एक्सीडेंट्स कैन अकर एनी टाइम, एज आई टोल्ड यू, एक्सीडेंट्स कभी भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं. सो इफ वी नो व्हाट टू डू, अगर हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए इसके बाद, तो हम केवल खुद की नहीं बल्कि अदर पर्सन की भी लाइफ को सेव कर सकते हैं. इफ यू सी एन एक्सीडेंट, अगर आप कोई एक्सीडेंट देखते हैं तो आपको काम रहने की कोशिश करनी है. इससे क्या होगा, आप एक राइट एक्शन ले पाएंगे. राइट. नाउ अमेजिंग फैक्ट दैट रेड क्रॉस सोसाइटी, व्हाट इज इट? रेड क्रॉस सोसाइटी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स को रन करती है. ठीक है, ब्लड डोनेशन कैंप होल्ड करती है, डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है, एक्सेट्रा. Now let us recall the chapter. So all accidents take place because of our careless. जितने भी accidents हैं वो हमारी लापरवाही यानी कि carelessness की वजह से होते हैं. Secondly, prevention is better than cure. Third, accidents can be avoided. Accidents को avoid किया जा सकता है roads पर by following the traffic rules. Then first aid क्या है? एक quick and correct help जो एक इंजर्ड पर्सन को दी जाती है या एक हर्ट या सिक पर्सन को दी जाती है बिफोर द डॉक्टर कम्स. एंड वी शुड कीप ऑल इंपॉर्टेंट फोन नंबर्स, एज आई टोल्ड यू कि जितने भी इंपॉर्टेंट फोन नंबर्स हैं वी शुड कीप देम विद अस ऑल ऑफ द टाइम. So that's all for the chapter. These were the safety measures or the precautionary measures which we all have to follow every time, everywhere. All right. So now let's meet very soon in the next session, and then keep going well, and thanks to everyone.